آج ہم آپ کو ایک عجب کہانی سنائیں گے جو کہ سندھ کی دھرتی کے ساتھ مذاق نظر آتا ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے نام پر ایک نیا محکمہ 2014 میں بنایا گیا جو کہ شہر قائد اور سندھ کی دھرتی کو کچرے سے پاک کر دے گا، یہ نوید سنائی گئی۔ تاہم اس کے پہلے ایم ڈی روشن علی شیخ کو تعینات کیا گیا جنہوں نے کلفٹن باتائی لینڈ میں 2 بنگلے 42 اور 48 کرائے پر لیے اور اس پر لاکھوں روپے تزئین و آرائش پر خرچ کیے گئے اور گاڑیاں خریدی گئیں افسران کے لیے، یعنی افسران کے پاس پہلے گاڑی نہیں تھی، یہ سیدھے گھر سے آئے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں لگ گئے۔ یہ پہلے کہیں ڈیوٹی پہ نہیں تھے کہ گاڑیاں خریدنی پڑیں۔ تاہم یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بالآخر 2016 میں فروری میں فعال ہونا شروع ہوا اور پھر دوسرے ایم ڈی اے ڈی سجنانی تشریف لاتے ہیں جو کہ یقینی طور پر ہیلتھ سروسز سے تعلق بھی رکھتے تھے، اور پھر وہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، یونین حرکت میں آئی۔ تاہم فروری 2017 میں اس وقت کے وزیر بلدیات جام خان شورو نے جہاں چائنیز کمپنی سے معاہدہ کیا تھا، ان کی مشینریاں 2 فروری 2017 کو کراچی پورٹ سے خود چلا کر باہر لا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہمراہ سابق چیئرمین بلدیات جنوبی ملک فیاض بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گاڑی خود چلا کے پورٹ سے باہر لائے، کیونکہ جام خان شورو چاہتے تھے کہ یہ جلد سے جلد چائنیز کمپنی یہاں آئے اور کام شروع کر دے، اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 200 گاڑیاں چائنیز کمپنی لے کے آئی تھی۔ تاہم ان میں سے کچھ گاڑیاں لے کر وزیر بلدیات باہر آ رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ سجن یونین کے صدر سید ذوالفقار شاہ، راجہ عاصم شہزاد اور دیگر بھی یہاں موجود رہے، جبکہ سیکرٹری نادر خان، خالد ہاشمی اور دیگر بھی سالڈ ویسٹ کے افسران یہاں موجود تھے۔ کوئی بات نہیں۔ تاہم یہاں جو گاڑیاں لائی گئیں وہ یقینی طور پر کچھ ڈیمیج تھی، یعنی کہ وہ ابھی پورٹ سے باہر آئی تھیں لیکن ان کے فرنٹ کے اور کچھ حصے متاثر تھے، یعنی کہ وہ حادثے کا شکار لگ رہی تھیں، یقیناً وہ ٹکرا گئی ہوں گی، اور یہی وجہ ہے کہ گاڑیاں کھلونے کی لگ رہی تھیں۔ کوئی بات نہیں۔ تاہم یہ گاڑیاں باہر آ گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنیز کمپنی نے ڈسٹ بین کی نمائش کی کہ ڈسٹ بین بھی آ رہے ہیں، بڑے چھوٹے ہر سائز کے، پیلے، نیلے، ہرے، کالے، یعنی 7 رنگی ہوں گے، اور یہ شہر میں خوبصورتی کا ایک منظر پیش کرے گی۔ اس کو KMC ورکشاپ میں لا کر اتارا گیا جہاں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو جگہ دی گئی تھی بغیر کسی کرائے کے، اور آج تک بھی وصولی نہیں ہوئی، جبکہ یہ پرائیویٹ کمپنی ہے۔ آپ نے اس کو جگہ فراہم کی لیکن کرایہ نہیں لیا۔ کوئی بات نہیں، اور مل بھی جاتا تو بڑے کھلاڑی تھے KMC میں بھی، وہ بھی کھا جاتے۔ کوئی بات نہیں، سالڈ ویسٹ میں تو ویسے ہی پیڑ بھرتا ہی نہیں ہے۔ پھر معاملہ ہوا اور سما معاہدے کے نام پر بلدیہ جنوبی کے چیئرمین ملک فیاض نے سب سے پہلے لبیک کیا، اور اس کے بعد وزیر بلدیات جام خان شورو نے کوشش کی، اور بلدیہ ملیر اور بلدیہ غربی نے 6 اکتوبر 2017 کو باقاعدہ چائنیز کمپنی سے معاہدہ کیا، جبکہ بلدیہ شرقی پہلے ہی معاہدے میں آ چکی تھی۔ اس طرح یہ 4 DMCs نے معاہدے کیے اور کہا کہ ہم چائنیز کمپنی کے ساتھ کام کریں گے اور امید ہوئی کہ معاملات اچھے ہوں گے۔ تاہم معاہدے کے تحت ملازمین، مشینریاں، دفاتر، سب کچھ محکمہ سینیٹیشن پورا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں ضم کرنا تھا، جو کہ ہو چکا۔ ملازمین پریشان ہونا شروع ہوئے، یونین کے شدید احتجاج اور ہڑتال شروع کر دی۔ وہ پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ہماری تو بات ہی نہیں سنی جا رہی۔ AD سجنانی سے میٹنگ بھی ہو چکی تھی، تاہم پریس کانفرنس کر ڈالی۔ سید ذوالفقار شاہ، کنیز فاطمہ اور دیگر یونین رہنماؤں نے کیا کہا سنواتے ہیں آپ کو، سنیے، اور صحیح کہہ رہے ہیں، سنیے۔ 92 میں آخری دفعہ بھرتی ہوئی ہے سینیٹری ورکروں کی۔ 92 کے بعد کوئی سینیٹری ورکر اس شہر میں بھرتی نہیں ہوا، 25 سال پرانا ہوا ہے۔ اگر یہ منصوبہ ہم پہ زبردستی مسلط کرتے ہیں تو ہمارے 70% لوگ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں۔ اگر سب ریٹائرمنٹ لکھ کے دے دیتے تو آپ بتائیں شہر کو صاف کون کرے؟ کہاں سے لائیں گے یہ افرادی قوت؟ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم دیکھیں آزمائش میں لوگوں کو نہیں ڈالنا چاہتے، یہی وجہ تھی ہم نے صرف کل 1 دن ہڑتال کی اور آج ہم کام پر ہیں۔ ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہمارے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس شہر میں کچرا ٹرین چلی، ناکام ہوئی۔ اس شہر میں خالد ایجنسی نے کام لیا، ناکام ہوا۔ اس شہر میں پہلی شنگھائی کی کمپنی آئی، وہ یہاں لوٹ مار کے لیے آئی تھی، وہ کچھ نہیں کر سکی اور انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ یہاں نہیں کی تھی۔ تو اب یہ مجبور ہو کے کچھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاتھ پاؤں جوڑ کر پرائیویٹ فرم کو لے کر آ رہے ہیں۔ اب آپ اپنے لوگوں کو ترجیح نہیں دے رہے، اپنے لوگوں کی مشینری درست کر کے نہیں دے رہے، اپنے لوگوں سے آپ کام لینے کو تیار نہیں ہے، تو چائنا سے آپ کیا کیا کام لیں گے؟
वो लोग तो कमाने आएंगे। हम ये कहते हैं जो 4 अरब रुपए आप उनको दे रहे हैं, या आप जो है $24 जो है पर टन उनको दे रहे हैं, आप 12 डॉलर हमें दें, हम आपको करके देंगे। हम चैलेंज करते हैं 1 साल में शहर में कचरे के बिल्कुल निजाम को हम ऐसा करके देंगे, इंशाल्लाह नीट एंड क्लीन होगा पूरा शहर। लेकिन यह है कि ये एतमाद नहीं कर रहा है। आप ये देखें कि जब जहां पर 14 से 15 हजार लोग 80,000 की आबादी में काम करते थे, 80 लाख की आबादी में करते थे, अब इस वक्त 55 लाख को मकान है खाली शहर में। इसके बाद आबादी 2.5 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। जब 2.5 करोड़ से ऊपर आबादी हो चुकी है, तो जब तक आप उनके लिए सैनिटरी वर्कर भर्ती नहीं करेंगे, मशीनरी को दुरुस्त नहीं करेंगे, कचरा कुंडियां दिन ब दिन आप जो है वो मलकियत में देते जा रहे हैं, वो चाइना कटिंग में देते जा रहे हैं, तो आप बताएं इसमें कसूर किसका है? हम तो कह रहे हैं कि इसको साबित करें कि अगर मजदूर का किसी एक का भी कसूर है तो आप प्रूफ करें इस चीज को। हम काम करने को तैयार हैं, हम चैलेंज कबूल करने को तैयार हैं कि अगर ये हुकूमत को कहती है तो हम 1 साल में इनको सिस्टम करके देंगे, चाइना से आधा पैसा में। जुल्फ़िकार शाह का कहना दुरुस्त है। अगर ये इतना मुक़द्दस और काबिल तहसीन काम कर रहा है तो कंटोनमेंट बोर्ड ने क्यों नहीं हाँ की, और कंटोनमेंट बोर्ड से क्यों नहीं कहा गया कि वो भी सॉलिड वेस्ट में आए? कोई बात नहीं। ताहम MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड AD सजनानी को भी सैयद जुल्फ़िकार शाह ने दीगर रहनुमाओं के हमरा बाकायदा चार्टर ऑफ डिमांड पेश की कि ये लीजिए, ये हम आपको दे रहे हैं, इसमें तमाम तर हमारे मुतालबात है, यानी मेहनत कशों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है, और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ मिलके उसकी बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। ये इन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया। ताहम AD सजनानी ने फिर 14 फरवरी 2017 को एक ख़त लिखा यूनियन रहनुमा कनीज़ फातिमा जुल्फ़िकार शाह के नाम। कहा कि 2 फरवरी को जो चार्टर ऑफ डिमांड आपने दिया था, इस पर हमने लोकल गवर्नमेंट से बातचीत की है, और अब हम 15 फरवरी 2017 को बैठेंगे और बैठक लगाएंगे, जिसमें चार्टर ऑफ डिमांड के तमाम कागजात भी जो कि शामिल हैं, आप देख रहे हैं, वो उस पर हम बात करेंगे। और यह ख़त यूनियन रहनुमाओं को मिलके और मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन मामला तय नहीं हुए और मुज़ाहरे शुरू हो गए और मुज़ाहरे बढ़ते चले गए। और इस दौरान पाकिस्तान के मुमताज़ तरीन सियासतदान नबील कबूल ने भी मुलाजमीन से यकजहती करने के लिए एहतजाजी रैली में शिरकत की और सिंध हुकूमत को खबरदार करते हुए बात की, और जिस बात पर पर्दादारी थी पोल भी खोल दिया। करोड़ों का मामला है। सुनिए नबील कबूल की ज़बानी कि सॉलिड वेस्ट हाथी क्यों कहते हैं हम, सुनिए। चंद रुपयों के एवज इन कमीशनों के चक्कर में आज हमारे मजदूरों के घर में चूल्हा नहीं चल रहा है, तो मैं उन चेयरमैनों को कहूंगा कि तुम्हारे घर के सामने भी हम बैठेंगे और हम देखते हैं कि तुम घर से कैसे बाहर निकलोगे। धूप मरो, धूप मरो, धूप मरो, धूप मरो। जब DMC साउथ के चेयरमैन से हमारे मजदूर यूनियन ने बात की, तो उसने कहा कि भाई मैंने करोड़ों रुपया खर्च करके मैं चेयरमैन बना हूं, तो मुझे आखिर पैसे तो निकालने हैं। और पहले ही 3 महीने में उसने ये निजकारी का जो ठेका दिया अपने पंटरों के कहने के ऊपर, ये जो ठेकेदारी निजाम और ये जो ठेका दिया गया, इसमें आप लोगों को पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में DMC साउथ हो या वेस्ट हो कितना कमीशन लिया है? पूरे 10 करोड़ रुपए कमीशन दिया है। यही है कि फौरी तौर पर मेरा मुतालबा है कि इस ठेकेदारी निजाम को खत्म करें, मजदूरों का उनका जायज हुकूक दिलाएं। और मैं आसिफ अली जरदारी साहब से अपील करता हूं, वो 23 तारीख को आ रहे हैं और वो मेरी आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी। मैं अपील करता हूं कि जब आप कराची पहुंचे तो सबसे पहला ऑर्डर अपने वजीर आला को दें कि ये निजकारी निजाम का कैंसिल होना चाहिए, ये निजकारी निजाम खत्म हो जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूरों की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूरों को बेरोजगार नहीं करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजगार देती है। और आज आपकी हुकूमत में अगर आपके ही चेयरमैन आपके ही लोगों को बेरोजगार बना दे, आप ही के मजदूर को के घर में चूल्हा नहीं जले,
तो फिर ऐसी हुकूमत में बैठने वालों का क्या फायदा। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी आवाज बिलावल भुट्टो जरदारी तक भी पहुंचेगा और वो इस पे कोई ना कोई एक्शन लेंगे। और यही वजह है कि मैं आया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक मेरी आवाज वैसे ही पहुंच जाती है, मैं टीवी में न बैठता हूं। इसके बाद फिर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। एडी संजानी मुलाकात करते रहे, यानी लॉलीपॉप देने का सिलसिला शुरू हुआ। ताहम फिर बल्दिया गरबी और बल्दिया मलिड ने भी सॉलिड वेस्ट में हंगामी बुनियादों पर जहां शमूलियत का ऐलान किया था, वो भी परेशान हो गए कि ये क्या मामलात है, और उन्होंने भी अपने कौंसल के ज़रिए 2-3 करारदादें मंजूर की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ख़िलाफ़ कि ये पैदागिरी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बल्दिया मलीर में भी अफसरान की पैदागिरी रुक गई थी, वो भी 2 नंबर काम कर रहे थे। ताहम आज नैब में केस इसी वजह से चल रहा है। इस दौरान सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में MD बदलते रहे ताकि यूनियन को लॉलीपॉप देते रहें। रोशन अली शेख पहले MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड थे, फिर AD संजलानी बने जो कि 3 मरतबा MD रहे। इसके साथ साथ ताहा फारूकी, डॉक्टर सईद मिंगेरियो, आसिफ इकराम और कोई शेख साहब भी तशरीफ़ लाए थे। और अब ज़ुबैर अहमद चन्ना MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की हैसियत से मौजूद हैं, और ये बड़े दिन रह गए। कोई बात नहीं, शाबाश है, लेकिन OPS तो हो भाई। ताहम यूनियन मुज़ाकरात करती रही। ज़ुबैर चन्ना से जुल्फ़िकार शाह यूनियन के रहनुमा ऑफिस और ऑफिस के बाहर भी पकड़ लेते थे और मुज़ाकरात करते रहते थे, लेकिन लॉलीपॉप मिलती रही। लेकिन साथ साथ यूनियन की कोशिशें रंग लाई और कुछ कामयाबी मिली। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो कि सफ़ेद हाथी है, और नबील कबूल हमारी बात की तस्दीक कर चुके हैं कि जो कि 1.5 अरब के बजट से शुरू हुआ था, आज 10 अरब रुपए तक पहुंच गया। और ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के नाम पर फ्रॉड है, क्योंकि ये सिर्फ कराची के 4 अजला में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की हैसियत से काम कर रहा है। लिहाजा ये ना तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है और ना कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। ये 6 सालों में क्या काम कर सका, इसकी कारकर्दगी क्या है, सिंध में इसका वजूद नहीं। अब वज़ीर आला सिंध इसको बचाने के लिए डिविजनल की सतह पर काम का ऐलान करते हैं। ये बात सुनी अनसुनी हो गई, इसलिए कि अफसरान को खुशहाल रखने और ख़ुद खुशहाल रखने के लिए सॉलिड वेस्ट के नाम पर हैदराबाद में भी खपाया जा रहा है। अफसरान कराची में, हैदराबाद कोई नहीं है, दफ्तरी नहीं है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का दफ्तर बनाया हुआ है मरीख में, इसी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पूरे सिंध में है, लेकिन सिंध का नाम है और 4 अजला में काम कर रहा है। ये है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुआहदे की खुला वर्जी कर रहा है। इसके पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन गैर मुल्की तारकीन वतन और चाइल्ड लेबर की भी यहाँ पर भरमार है और कानून के पड़कचे उड़ाए जा रहे हैं। सरकारी मशीनरियाँ जो कि DMCs की सतह पर मौजूद थी, उनको स्क्रैप कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया। जबकि इनका किराया भी जहाँ DMCs को देना था वो भी नहीं लिया, DMCs वालों ने भी नहीं मांगा, इसलिए कि अगर मांगते तो नौकरी चली जाती, चेयरमैन सस्पेंड हो जाता। कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान तो हमें हुआ, क्योंकि चाइनीज़ ले जा रहे हैं डॉलर में, और चाइनीज़ तो क्या ले जा रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब होने वाला सर फहरिस्त महकमा है। इसमें OPS डिपोटेशन, ऑफर टर्न प्रमोशन और DMCs के जाली हेलीकॉप्टर समझ गए होंगे, भर्ती होने वाले इस इदारे में छुपे हुए हैं, महफूज हैं। आमदनी से इनके ज़ायद असासे हैं, कोई नहीं देख रहा। DMCs 1700 में कूड़ा करकट उठाती थी, यानी 1 टन 1700 में अगर उठा लेती थी तो ये 6500 रुपये में 1 टन उठा रहे थे। शाबाश, अब और रेट बढ़ेंगे। और ये ढूंढ कर मट्टी मलबा उठाते हैं ताकि पैसे बढ़ें। इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान भी मुलव्विस हैं, वो भी हम नाम लेके बताएंगे, तस्वीर भी दिखाएंगे। आ गई ये तस्वीर, और कहाँ रह रहे हैं और आमदनी से ज़ायद असासे भी साबित करेंगे। पहले क्या थे, आज क्या हो गए। ताहम कूड़े करकट में मट्टी मलबा ज़रूरी है, और मट्टी मलबा उठाने के लिए ख़बर भी हम आपको सुना चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के डॉलर लूटे जा रहे हैं, सिंध की धरती से डॉलर जा रहे हैं, आमदनी से ज़ायद अज़ा से अफसरान के भी बनते जा रहे हैं, लेकिन हमारे इदारे खामोश हैं। खामोश रहे और खामोशी रहेंगे, लेकिन आज ज़रूर परेशान होंगे। 4 अजला के नाम नहायत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान खुशहाल
اور دیکھتی آنکھوں سے عوام پریشان. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ سوال اپنی جگہ قائم ہوتا ہے. عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.